Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum to you all, my dear students. Here is your teacher Sabah Akhtar, lecturer of biology from Army Public School and College. Today we will learn about lungs and mechanism of breathing, and these two topics are taken from chapter number 1, which is gaseous exchange. In our previous lecture we have studied about the gaseous exchange in humans. So what are the objectives of today? At the end of the lecture, you will be able to learn about structure of lungs, define the term breathing, describe mechanism of breathing, distinguish between inspiration and expiration. So come towards our topic, lungs. Dear students, all the alveoli on one side constitute a lung. एक ही साइड पर जितनी भी alveoli होती हैं हमारे चेस्ट कैविटी में और इन दी थोरेसिक कैविटी, वो क्या बनाती हैं? लंग्स बनाती हैं. अ पेयर ऑफ लंग्स इज प्रेजेंट इन आवर थोरेसिक कैविटी. हमारी जो थोरेसिक कैविटी होती है विच इज ऑल्सो नोन एज चेस्ट कैविटी, उसमें लंग्स का एक पेयर मौजूद होता है, मीन्स 2 लंग्स मौजूद होते हैं. चेस्ट वॉल इज मेड अप ऑफ 12 रिब्स एंड द रिब मसल्स कॉल्ड द इंटरकोस्टल मसल्स. जो हमारी चेस्ट वॉल होती है उसमें 12 पेयर्स होते हैं रिब्स के, मींस टोटल कितनी रिब्स होती हैं? 24 रिब्स. और इन रिब्स के साथ इनके अंदर क्या होते हैं? इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं जो क्या करते हैं? हेल्प करते हैं इन रिब्स की अटैचमेंट में, ताकि रिब्स एक दूसरे के साथ अटैच रहें और इनकी अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट में हेल्प करते हैं. डायफ्राम इज प्रेजेंट बिलो दी लंग्स. लंग्स के बिल्कुल नीचे क्या प्रेजेंट होता है? डायफ्राम प्रेजेंट होता है. और डायफ्राम क्या है? एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है विच हेल्प इन कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन. लेफ्ट लंग इज स्लाइटली स्मॉलर देन द राइट लंग एंड इट हैज 2 लूप्स while the right lung is slightly bigger than the left one and it has 3 loops. कितनी loops होती हैं इसमें? 3 loops होती हैं राइट लंग में, और ये थोड़ा सा बड़ा होता है लेफ्ट लंग से. और लेफ्ट लंग के अंदर कितनी loops होती हैं? ओनली 2 loops, the superior and the inferior, और ये थोड़ा सा स्मॉलर होता है राइट लंग से. दे आर स्पंजी एंड इलास्टिक ऑर्गन्स. ये स्पंजी और इलास्टिक होते हैं, इसलिए ये कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कर सकते हैं, एयर को इनहेल और एक्सहेल कर सकते हैं. Lungs have blood vessels that are branches of the pulmonary artery and the pulmonary veins. Lungs में blood vessels भी मौजूद होती हैं जो किसकी branches होती हैं? Pulmonary artery की and pulmonary vein की. I have discussed this in detail in my previous lecture. मैंने बहुत डिटेल में ये दोनों ही pulmonary artery और pulmonary vein को previous lecture में डिस्कस किया था. Fine. Lung is enclosed by pleural membranes. डियर स्टूडेंट्स, दोनों जो लंग्स होती हैं ना, वो किस में इंक्लोज्ड होते हैं, किस में कवर्ड होते हैं? मेम्ब्रेन्स में कवर्ड होते हैं. आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन एंड दी इनर प्लूरल मेम्ब्रेन. 2 मेम्ब्रेन्स होती हैं, ठीक है, एक आउटर होती है और एक इनर होती है. एंड दीज मेम्ब्रेन इंक्लोज अ फ्लूइड विच प्रोवाइड लुब्रिकेशन फॉर द फ्री एक्सपेंडिंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग ऑफ द लंग्स. फाइन. दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच में एक लिक्विड प्रेजेंट होता है जो इन लंग्स को कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड करता है. ओके. Now look at this diagram. I have explained each and everything in my previous lecture from this diagram as well. This is larynx and these C-shaped cartilages are present in trachea. When this trachea enters in chest cavity or the thoracic cavity, it is divided into 2 tubes which are known as bronchi or singular bronchus. Then bronchus will enter in the lungs and then it will further divided into narrower or the thinner tubes which are known as bronchioles, and then these bronchioles will end on alveoli. These sac-like structures are known as alveoli, and these alveoli are actually the respiratory surfaces in human beings. Fine. And this outer membrane, the white one, is known as the outer pleural membrane, while this purple membrane which is inside the lung, this is known as the inner pleural membrane, and between these 2 membranes a liquid is present which is provide the lubrication for the contraction or the expansion of these lungs. Fine. उर्दू में भी एक्सप्लेन कर देती हूँ. देखें, ये पोर्शन क्या है? लैरंक्स है. दिस वन इज नोन एज ट्रेकिया.
ये सी शेप कार्टिलेजेस हैं जो ट्रेकिया में प्रेजेंट है, और जब ये ट्रेकिया चेस्ट कैविटी में एंटर होता है तो ये किस में डिवाइड हो जाता है, ब्रोंकाई में डिवाइडेड हो जाता है। देन ये ब्रोंकस हर लंग के अंदर चले जाता है। लेफ्ट ब्रोंकस जो होगा वो लेफ्ट लंग के अंदर जाएगा, और जो राइट ब्रोंकस होगा विल एंटर इनटू राइट लंग। देन जब ये इनमें लंग्स के अंदर एंटर हो जाएगा तो ये किस में डिवाइड होगा, फर्दर ये स्मॉलर और नैरोअर ट्यूब्स में डिवाइड हो जाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं, ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। और ये जो ब्रोंक्यूल्स हैं ये एंड कहाँ पर होते हैं, ये एल्वियोलाई पर जाकर एंड होते हैं। देखें इतना सा पोर्शन जब जूम किया तो ये आपको नजर आ रही है सैक लाइक स्ट्रक्चर्स, दीज आर दी एल्वियोलाई। और ये एल्वियोलाई क्या है, रेस्पिरेटरी सरफेसेस हैं ह्यूमन बींग्स में। फाइन, here is another diagram. देखें दिस इज लेफ्ट लंग एंड दिस वन इज राइट लंग. Left lung is slightly smaller than the right one because left lung has two lobes, superior lobe and inferior lobe, while the right lung has three lobes, superior, then middle and then inferior. तो इसलिए जो right lung होता है वो थोड़ा सा ज्यादा बड़ा होता है left lung से. Got it? Now these are the intercostal muscles. This is the rib cage which is made up of 12 pairs of ribs. जैसे मैंने आपको पहले बताया कि 12 pairs होते हैं रिब्स के, और टोटल कितनी रिब्स होती हैं, 24 रिब्स होती हैं. इन रिब्स के बीच में दरमियान में क्या प्रेजेंट होता है, इन बिटवीन दीज रिब्स इंटरकोस्टल मसल्स आर प्रेजेंट. जो बिल्कुल अंदर इंटरकोस्टल मसल्स प्रेजेंट होते हैं, दीज आर नोन एज इनर इंटरकोस्टल मसल्स और द इनर मोस्ट इंटरकोस्टल मसल्स. और इसके बाद जो प्रेजेंट होते हैं थोड़ा सा बाहर, दीज आर नोन एज इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स. और जो बिल्कुल बाहर प्रेजेंट होते हैं, ये वाले जो आपको नजर आ रहे हैं, दीज आर नोन एज एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स. फाइन, हियर इज अनदर डायग्राम. देखें डायाफ्राम, जैसे मैंने लंग्स के इंट्रोडक्शन में आपको बताया कि बिलो दी लंग्स देयर इज अ डायाफ्राम. ठीक है, तो ये डायाफ्राम है विच इज अ मस्कुलर स्ट्रक्चर. कहाँ प्रेजेंट होता है, थोरेसिक कैविटी में ही प्रेजेंट होता है, बिलो दी लंग्स. और ये भी कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में हेल्प करता है, एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है हमारे पास. फाइन, नाउ हियर इज अनदर टॉपिक विच इज मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग. So the physical movements associated with the gases exchange are called breathing. जो भी देखें फिजिकल मूवमेंट होंगी हमारी ब्रीदिंग, उसको हम कहेंगे ब्रीदिंग. फिजिकल मूवमेंट मींस इनहेलेशन और एक्सहेलेशन. गैसेस को एक्सचेंज करने के लिए जो फिजिकल मूवमेंट होंगी, दीज आर नोन एज ब्रीदिंग. राइट, phases of breathing, there are two phases of breathing, inhalation which is also known as inspiration and exhalation which is also known as expiration. Got it? अब फर्स्ट सबसे पहले हम पढ़ते हैं इनहेलेशन. इनहेलेशन में क्या होता है, द इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट सेंडिंग द रिब केज अपवर्ड एंड आउटवर्ड. जब हम इनहेलेशन करते हैं, हम जब एयर को इनहेल कर रहे होते हैं, आप खुद करके देखें, इनहेल एयर को करें, देखें जरा चेस्ट कैविटी में क्या चेंजेस आ रही हैं. ये चेंजेस आएंगी कि जो इंटरकोस्टल मसल्स होंगे वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे. उसकी वजह से हमारा जो रिब केज है, ये वाला जो रिब केज है, ये अपवर्ड मूव करेगा और आउटवर्ड मूव करेगा, बाहर की तरफ और ऊपर की तरफ मूव करेगा. फाइन, जब ऐसा होगा तो डायाफ्राम विल कॉन्ट्रैक्ट एंड मूव डाउनवर्ड. जो डायाफ्राम होगा वो कॉन्ट्रैक्ट होगा और नीचे की तरफ डाउनवर्ड मूव करेगा. वॉल्यूम इनसाइड द चेस्ट कैविटी इंक्रीज. देखें डेफिनेटली वॉल्यूम इंक्रीज होगा क्योंकि रिब्स ने क्या किया, अपवर्ड और आउटवर्ड मूव किया. तो जो इसके अंदर वॉल्यूम होगा थोरेसिक कैविटी में, वो इंक्रीज हो जाएगा. द प्रेशर इनसाइड द चेस्ट कैविटी डिक्रीज. जब वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो प्रेशर डिक्रीज होगा, बिकॉज वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर. जितना वॉल्यूम ज्यादा होगा प्रेशर उतना ही कम होगा. जब ऐसा होगा तो फिर एयर एंटर्स द लंग्स टू इक्वलाइज द प्रेशर. हम हवा को इनहेल कर लेंगे, हवा जल्दी से अंदर आ जाएगी ताकि प्रेशर इक्वलाइज हो जाए. गॉट इट? नाउ एक्सहेलेशन. एक्सहेलेशन या एक्सपायरेशन. द इंटरकोस्टल मसल्स रिलैक्स सेंडिंग द रिब केज डाउनवर्ड एंड द इनवर्ड. ये एग्जैक्टली अपोजिट है इनहेलेशन के. इसमें क्या होगा, इंटरकोस्टल मसल्स रिलैक्स हो जाएंगे. इनहेलेशन में क्या हो रहा था, इंटरकोस्टल मसल्स
कॉन्ट्रैक्ट हो रहे थे। इसमें एक्सेलेशन में क्या होगा, रिबकेज डाउनवर्ड एंड इनवर्ड मूव करेगा, वाइल इनहेलेशन में क्या हो रहा था, रिबकेज अपवर्ड और आउटवर्ड मूव कर रहा था। फाइन। इसमें एक्सेलेशन जब हम एयर को बाहर एक्सेल करेंगे, जरा एक्सरसाइज करके देखें, थोड़ी सी एक्सेल करें एयर को। जब एक्सेल कर रहे हैं तो हमारा जो रिबकेज है वो डाउनवर्ड और इनवर्ड मूव कर रहा है, अंदर की तरफ मूव कर रहा है। फाइन। एंड डायाफ्राम रिलैक्स हो जाएगा एंड मूव अपवर्ड। वॉल्यूम इनसाइड दी चेस्ट कैविटी डिक्रीज, देखें वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा जब रिब्स जो है वो डाउनवर्ड और इनवर्ड मूव की, रिबकेज बिल्कुल अंदर हो गया तो फिर क्या होगा, वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। जब वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। फाइन। प्रेशर इनसाइड दी चेस्ट कैविटी इंक्रीजेस, वो बढ़ जाएगा बिकॉज वॉल्यूम एंड प्रेशर आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। फाइन, दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एयर एग्जिट द लंग्स टू इक्वलाइज द प्रेशर, तो एयर जो होगी वो यहां से बाहर निकलेगी, हम एक्सेल करेंगे एयर को ताकि प्रेशर को इक्वलाइज किया जा सके। गॉट इट? ह्यूमन ब्रीथ 16 to 20 टाइम्स पर मिनट इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस एट रेस्ट। देखिए जब हम रेस्ट पर होते हैं तो हम 16 to 20 टाइम्स ब्रीथ करते हैं 1 मिनट में। फाइन। द रेट ऑफ ब्रीदिंग इज कंट्रोल्ड बाय रेस्पिरेटरी सेंटर इन ब्रेन। जो ब्रीदिंग है वो कौन कंट्रोल करता है, रेस्पिरेटरी सेंटर कंट्रोल करता है। और ये रेस्पिरेटरी सेंटर कहाँ मौजूद है, ये ब्रेन में मौजूद है। ब्रेन में रेस्पिरेटरी सेंटर किसको कहा जाता है, एक्चुअली ये मेडुला ऑब्लंगेटा और पोन्स को कहा जाता है। वो क्या करता है, ये इन दोनों का क्या फंक्शन है, ब्रीदिंग को कंट्रोल करना। फाइन। रेस्पिरेटरी सेंटर इज सेंसिटिव टू द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। रेस्पिरेटरी सेंटर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन को लेकर बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। जैसे ही ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन में थोड़ी सी चेंजिंग आती है तो वो रेस्पिरेटरी सेंटर फौरन से उसको डिटेक्ट करता है। फाइन। Let me give you an example. For example, when we do hard job, our muscle cells carry out cellular respiration at a greater rate. It results in the production of more carbon dioxide which is released in the blood. देखें जब हम हार्ड जॉब कर रहे होते हैं, हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, हम रनिंग कर रहे होते हैं, उस दौरान क्या होता है, हमारे सेल्स जो हैं वो रेस्पिरेशन ग्रेटर रेट पर कर रहे होते हैं। जब रेस्पिरेशन ज्यादा हो रही होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन भी ज्यादा हो जाएगी ब्लड में। फाइन। फिर क्या होगा, जब कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी तो क्या होगा, the greater than the normal concentration of carbon dioxide stimulate the respiratory center of the brain. देखें मैंने आपको पिछली स्लाइड में भी बताया कि रेस्पिरेटरी सेंटर सेंसिटिव है कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन को लेके। तो जैसे ही हम एक्सरसाइज करते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन ज्यादा हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई, तो इस कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ने क्या किया, रेस्पिरेटरी सेंटर को स्टिमुलेट कर दिया। फाइन। The respiratory center sends messages to the rib muscles and diaphragm to increase the rate of breathing so that the excess carbon dioxide present in the blood can be removed out of the body. तो रेस्पिरेटरी सेंटर ने जो ब्रेन के अंदर मौजूद है विच इज मेडुला ऑब्लंगेटा एंड पोन्स, वो क्या करते हैं, रिब मसल्स को मैसेज करते हैं और डायाफ्राम को मैसेज करते हैं कि रेट ऑफ ब्रीदिंग को बढ़ा दिया जाए। जब रेट ऑफ ब्रीदिंग बढ़ जाएगी तो हम ज्यादा से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर निकाल सकेंगे। फाइन। ओके, नाउ ड्यूरिंग द एक्सरसाइज और अदर हार्ड फिजिकल वर्क ब्रीदिंग रेट में इंक्रीज अप टू 30 to 40 टाइम्स पर मिनट। देखें जब हम हार्ड एक्सरसाइज कर रहे होते हैं या हम लोग रनिंग कर रहे हैं फॉर सपोज, तो उस वक्त ब्रीदिंग रेट हमारा 30 to 40 टाइम्स इंक्रीज हो सकता है पर मिनट, और रेस्ट में कितना था, 16 to 20 टाइम्स। फाइन। नाउ हियर इज अ टेबल ऑफ कंपैरिजन बिटवीन इंस्पायर्ड एंड एक्सपायर्ड एयर। अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन 21% हम लोग इंस्पायर करते हैं, 16% हम एक्सपायर करते हैं। मतलब इंस्पायर्ड एयर में ऑक्सीजन की अमाउंट कितनी होती है, 21%, और जो एक्सपायर्ड करते हैं हम लोग एयर बाहर एक्सेल करते हैं उसमें इसकी कितनी अमाउंट होती है ऑक्सीजन की, 16%। कार्बन डाइऑक्साइड कितनी प्रेजेंट होती है, 0.04% जो एयर हम इनहेल करते हैं, और जो हम एक्सेल करते हैं उसमें कितनी होती है, 4%। नाइट्रोजन हम जितनी इनहेल करते हैं उतनी ही परसेंट में एक्सेल करते हैं, दैट इज 79%। अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स वेरिएबल होते हैं इंस्पायर्ड एयर में और एक्सपायर्ड एयर में सैचुरेटेड होते हैं। अमाउंट ऑफ डस्ट पार्टिकल वेरिएबल होते हैं इंस्पायर्ड एयर में और एक्सपायर्ड एयर में बिल्कुल भी नहीं होते।
टेम्परेचर भी वेरिएबल होता है इंस्पायर्ड एयर में, और एक्सपायर्ड एयर में कितना होता है, ऑलमोस्ट इक्वल टू दी बॉडी टेम्परेचर। जैसे मैंने आपको पहले पिछले लेक्चर में बताया था कि जो हेयर के अंदर जो नोज के अंदर ये छोटे छोटे से हेयर्स होते हैं, और जो म्यूकस होता है वो म्यूकस क्या कर रहा होता है, वो बाहर से आने वाली एयर को बिल्कुल जो इनकमिंग एयर होती है उसको इक्वल टू दी बॉडी टेम्परेचर कर रहा होता है। तो जब हम लोग एयर को बाहर एक्सेल करते हैं तो इट विल ऑलमोस्ट इक्वल टू दी बॉडी टेम्परेचर, ठीक है ना। और जो डस्ट पार्टिकल होते हैं वो किसके साथ एडहेयर हो जाते हैं, हमारे जो नोस्ट्रिल्स के अंदर, जो हमारे नोज के अंदर जो छोटे छोटे से हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, सीलिया लाइक छोटे छोटे से होते हैं, उनके साथ वो एडहेयर हो जाते हैं डस्ट पार्टिकल। बाय। Here is a video for you all, and after watching this video, all the concepts which we have studied today will be clear to you all. Fine. So let's start our video. Here it is. The respiratory system moves air through the nose, pharynx, larynx, trachea, and bronchus to the alveoli, where the gas exchange between oxygen and carbon dioxide occurs. Nares are the openings to the nose. The nasal cavity is lined with cilia, mucous membranes, and blood capillaries. The air is filtered by cilia, moistened by mucous membranes, and warmed by the blood. Air moves into the pharynx or throat, the common passageway for food and air. Air continues on to the larynx. The epiglottis, a flap of tissue in front of the larynx, closes off the larynx when swallowed to prevent food from entering. The larynx or voice box contains the vocal folds. The trachea or windpipe connects the larynx to the bronchial tree. The cartilage rings of the trachea prevent the trachea from collapsing. Lungs are spongy tissue with alveoli and blood capillaries. Breathing occurs because of the expansion and contraction of the lungs. The bronchi carrying the air subdivide into smaller branches called bronchioles. At the end of each bronchiole are the alveolar sacs. The alveolar sacs are surrounded by blood capillaries and contain millions of single-layer alveoli cells where the gas exchange takes place. Oxygenated air goes from the nose to the pharynx, larynx, trachea, bronchus, and alveoli. By the process of diffusion, oxygen in the air moves from the alveoli to the capillaries. Carbon dioxide moves from the capillaries to the alveoli and is exhaled. This process is called respiration. I hope you have got all the concepts discussed in today's lecture. Thank you so much. Remember me in your prayers. Allah Hafiz.